बताइए, कोई है सवाल? सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो Sorry. choosing a place to live in. Before just we have to start choosing a place to live in. Before the some points regarding the earliest people, why were they on the move? So in this point, in this we have discussed the different points, and basically the 4 points why they were always on the move. The another point, how do we know about these people? So up to this point, if you can't understood, you can ask. बताइए, चलिए, इसका मतलब आप सबको सब आता है. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. वो किस तरह के, कोई भी किस प्रकार के प्लेस को चूज करता है रहने के लिए. तो साधारण शब्दों में आज के संदर्भ में भी हम जब बात करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट द पर्सन हु चूज टू लिव और वेयर ही अकोमोडेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, he got all the facilities and all the amenities. So regarding, we are also talking on the matter of early men, but we can't talk on the matter that they will got the electricity, they will got the mobile phone, whatever. But the another condition to survive, or we can say another condition in which they will get, for example, they will get the water very easily. So maybe they will live nearby, to live nearby the river or a pond, because all the basic amenities of the life they will got. This one here. Now look at the map 2 below. All the places marked with the red triangles. ये देखिए red triangle से जो दिखा है are sites from which archaeologists have found evidence of the hunter gatherers. So when we talk about the hunter gathering, so hunter gathering, the word made from the hunter gatherers. Clear? So when we talk about the hunter gatherers, शिकार और शिकार का मीनिंग क्या हो जाएगा? शिकार संग्रह करता. गैदर का मतलब वो कहता है इकट्ठा करना. तो इसका जब हिंदी में बोलेंगे तो शिकार करके इकट्ठा करना. Earlier tomorrow yesterday I told you also the use of the spices, to preserve the meat or the flesh for a long time. But this is not related to this, but we know about this, the hunter gatherers. So earlier the hunter gatherers totally dependent on hunting. And first of all they will hunt, then they will gather it, because some people also done the hunting, but they have just done for fun, because they're the amateurs, शौक के लिए करते हैं. जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं, बहुत से लोग जॉब मनी अर्न करने के लिए करते हैं, बहुत से लोग का जॉब करना उस फील्ड से, स्पेसिफिक फील्ड से एक पैशन है, एक हॉबी है कि मेरे को इसी फील्ड में जॉब करनी है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द हंटर गैदरर्स. द हंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू द हंटिंग, देन आफ्टर हंटिंग they will do the gathering. So the person who will first do the hunting and the gathering, they are known by the name of hunter gatherers. साधारण सी बात है कि जो hunting gathering करेगा उसका नाम क्या होगा? वो hunter gatherer कहलाएगा. And the marked on the map which are marked by the red triangles where the hunter gatherers live, or they chose a place to live in. Clear? Yes, sir. Is there any doubt? Hunter gatherers live in many more places. कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? Hunter gatherer lives in many more places. बहुत सी जगहों पर रहते थे. तो मैंने बताया कल आपको, बेसिकली सबसे मेन बेसिक पॉइंट क्या है कि वो पानी के स्रोत के पास रहेंगे. तो वो स्रोत कई प्रकार के हो सकते हैं. पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेक्स हो सकता है, या अदर जो वाटर के सोर्सेस हैं
वहां पर वो लिव करेंगे। या पानी के स्रोत के पास इसलिए भी रहेंगे कि दूसरे एनिमल्स आएंगे और उनको इजिली किल कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, और उनको पानी भी मिल जाएगा और फूड भी मिल जाएगा। दे विल ऑल्सो गेट। देखिए हर एक चीज आपको जो लगता है कि मैथ में 2 + 2 = 4, इसमें भी लॉजिक लगाएंगे, ये देखने के लिए सोशल साइंस है। ये भी पूरा का पूरा लॉजिक के बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको, सारा लॉजिक है। तो ये दिस सब्जेक्ट इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक। डोंट थिंक वट एवर आई विल write it will be okay. No, this subject will also contain logic. For example, if we read about the geography, or whether we have read about the history or civics, these things are also based on the logical reasoning. Clear? So now the places are marked: Hunski, Kurnool Yes, caves, sir. Hunski, Kurnool caves, and another red triangle is marked. भीमबेटका, भीमबेटका। Yes, 3 places. So 3 places where the hunter gatherers live. Bhimbetka. सब पैलियोलिथिक साइट्स हैं। Yes, Paleolithic site in these present. are the Paleolithic. We discussed about the paleo. Paleo, the word is derived from the Latin word and it means old. ओल्ड स्टोन, Meso means middle, ओल्ड स्टोन and the एज। neo means Neolithic. Neo means Neo, neo. New. Neo is related with new. मिडिल। Clear? यस सर। So now the another one is Bhimbetka. So the first place which is marked with this, the middle part of the map, Bhimbetka. This place is in MP, Madhya Pradesh. And is Hangusi. Madhya Pradesh. Then these Bhimbetka in present day Madhya Pradesh. This is an old site with the caves and the rock shelters. So this is a Paleolithic site. This is a Bhimbetka is a Paleolithic is a Paleolithic site. ठीक है? People choose their natural caves. Earlier men don't know how to make the caves. He was not skilled in that pattern that by their old previous tools they can make the caves. So they lived in that caves which are made naturally. So that's why at this page number 14 in this, on the left hand side, they have written in the small natural caves. The natural caves which will be made automatically, and which we can we say these are made by the nature automatically, or we can say by the God, with the help of God. Clear? This one. So because they provide shelter from the rain, बारिश होती है तो बारिश से बचने के काम में आती है, heat and wind, गर्मी से और सर्दी से. The same thing. बचाती है. Same thing. Why we make the, in the second or third standard you have read about, why we make the pukka houses, कि हम पक्के मकान क्यों बनाते हैं? Because it will save from rain, heat and wind. So these are the some reasons why we made the, or why we make the houses, and why the early men lived in the natural caves. Clear? Then these rock shelters are close to the Narmada Valley. I told you. Yes, sir. Why they choose the caves, and these caves near the Narmada Valley. नर्मदा The वैली. source of water is not too much far away from that place. Then can you think of why people choose to live here? I told you the reason. Sir, for farm. सब For because farming. of river. Yes, for water. because Yes, of river. sir. The simple thing. Sir, because First The point, crop need he will water get the to water grow. as well as he will get the food also. The crop needs Yes, water to sir. grow. Clear? Because of the river and food. Yes, yes. So clear?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. Another point, as stone tools देखते हैं, stone tools. देखिए, time to time there is a modification between the stone tools. When we talk about the Paleolithic, then the Paleolithic, the another one is Mesolithic, and the another one is Neolithic. Mesolithic. Neolithic. Mesolithic and Neolithic. Neolithic. And the another one is Mesolithic means Middle Neolithic. Stone Age, and Neolithic means Neolithic. Neolithic. Lithic. Clear? बताइए, Paleolithic, Mesolithic और Neolithic, ये सारी की सारी क्या है? एज है, Stone Age है. Lithic Age है. लिथिक एज है. Stone Age. और लिथ का मतलब होता है स्टोन. Stone. Stone Age है. So that's why this is known as Stone Age. Stone Age. Why we called it Stone Age? Because in this era, we can't say most, almost every tool was made of stone. And by making the stone with the help of another stone, they try to hit hard with the stone and another stone. So this is known as chipping method. And from that, they will make the stone. Clear? Because the earlier, before the invention of metal, these stone tools were in practice. Clear? These stone tools were in practice and the early men used it. क्या बोलते हैं इस मेथड को, क्या बोलते हैं? Chipping method है, chipping. This one, chipping method. There is stone on the stone. Stone. साधारण सी बात है बेटा, साधारण सी. उस एज की कल्पना कीजिए जिस समय अभी मेटल कोई नहीं आया था, तो कोई ना कोई हार्ड चीज किसी पर मारेंगे तो उसको नया शेप देगी. So that's why they use the stone and the hard stone on the soft stone. So they will create or they will give the shape to the new one. By this process, the new stone tools will be made. Clear? सर तो उस प्रोसेस का क्या नाम है? I told you this one. See at the page number, at the backward page. Method बताया मैंने आपको. तो कौन से पेज नंबर पर? कौन सा पेज? पेज नंबर 12 पे है. पेज नंबर 12. यस सर. ये चिपिंग मेथड है. देखिए चिपिंग मेथड है. चिपिंग. यस सर. जिसको फ्लेक टूल्स भी कहते हैं. फ्लेक टूल्स भी कहते हैं. सर 12 पेज नंबर पर. हाँ जी, पेज नंबर 12 पे. नो सर, यहाँ पे तो दिया है कि लेफ्ट साइड डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स और राइट साइड में स्टिचिंग क्लोथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन. सर दोनों फिगर का मतलब बताया है. बता रहे मतलब ये है और राइट का ये. एक मिनट रुकिए. सर स्टोन तो नहीं दिया है. स्टोन नहीं दिया है, इसमें हटा दिया है. लास्ट ईयर वाली बुक में था. उसको फ्लेक टूल्स भी कहते हैं. फ्लेक टूल्स वो चिपिंग मेथड ही है. इसमें नहीं लिखा है क्योंकि पहले वाली जो बुक है उसमें ये पूरा लिखा हुआ है. अब इस दोनों सेकंड और थर्ड लेसन को मर्ज करके एक लेसन बनाया है, तो चिपिंग मेथड ही कहलाता है. फ्लेक टूल्स लिखा है. ठीक है. अब दूसरा वाला जो कह रहे हैं पेज नंबर 12 पे, किस तरह से ग्राउंड को डिग करके एडिबल रूट्स को निकाला जाता है और उसको वो अर्ली मैन खाता था. देन अदर if they made another kind of stone which is look like a needle, and by first of all they try to sew the clothes with the help of these stone tools. Sewing machine होते हैं ना, मशीन कपड़े सिलने वाली. So they will make a needle like this, and by the another animals hair they will try to bind them, or we can say tied the animal skin, and they will try to hide their body from the animal's skin. Clear?
Yes, sir. Yes, sir. Now, the another thing, wrong painting. Wrong नहीं, rock painting. Yes, sir. इसमें किसी को कुछ पूछना है? No, No, sir. देखो, No, sir. कुछ भी No, डाउट? sir. देखिए रॉक पेंटिंग, आप लोग देखें कि नर्मदा वैली में वो नेचुरल केव्स में रहता था। इस तरह की कई पेंटिंग्स मिली हैं रॉक के ऊपर। रॉक का मतलब कि चट्टानों के ऊपर पेंटिंग। And you will surprised to know that these rock paintings will found inside the caves, and these caves were totally and totally dark. So when we talk about the dark means ये गुफाएं अंधेरे में हैं और इस अंधेरों के अंदर भित्ति चित्रकारी मिली है। तो ये चित्रकारी कैसे हुई, ये बड़ी ही अकल्पनीय चीज है, किस प्रकार से बना है। एंड व्हाट वाज द पर्पस टू ड्रॉ these paintings on the caves? So I told you in the previous classes, this is all about the guessing. हम सिर्फ गेस करते हैं, उसके बेसिस पे हम तो पता लगाते थे यहाँ पे कितनी पुरानी है, कितनी साल पुरानी पेंटिंग है। और द नेचुरल कलर्स which were used in these paintings, so whatever they have the metallurgy or the technology, they use the natural colors with the we can say they use the another stamp method, और किस तरीके से बनाया होगा उन लोगों ने। they also include some metals or whatever it natural metals, जो भी जिस तरीके से बनाया। but still after too much old, these paintings look totally new, बिल्कुल नई नई की तरह दिखती है। उसका कलर मतलब न्यू का मतलब ये उसका कलर फीका नहीं दिखता है, ठीक है, उसका कलर एकदम अजीब दिखता है और जैसे लगता है कि वो चित्रकारी बोल पड़ेगी, एकदम नया है, बिल्कुल एकदम नया। भाई। अब जो लिखा है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेसेस, अभी इन स्थानों पे भ्रमण नहीं किया हूँ कि मैं बता सकता हूँ। हाँ, भ्रमण किया था, बताता तो यहाँ पर कंफर्म होता, बट आई विल आल्सो एक्सप्लेन with the help of the books which is written. Another thing, the rock paintings. Why these rock paintings were made? These rock paintings were made because it is related, or the early man think, और उसकी थिंकिंग समझ में आती है कि he was superstitious. दूसरों समझाने के लिए हम रॉक पेंटिंग Sir, what is the meaning of superstitious? Superstitious word is derived from superstition. Please. Superstitious word is derived from the superstition. In Hindi, it is known as Andhvishwas. Here, in Hindi, it is known as Andhvishwas. Yes, sir. So, we can say the early man, आज भी लोग अंधविश्वास में जीते हैं। अरे इसे तो भूत पकड़ लिया, इसे झड़वाओ फुकवाओ, तो आज की इस एज में भूत पकड़ भी लेता होगा। अरे छोड़िए उस सब बातों को, कहने का मतलब बिल्ली रास्ता काट के अब शगुन हो गया, रात में लोग पानी गिनते हैं, Yes, sir. लोहा नहीं खरीदते हैं। What is this? This is all about the superstition. So right now we are living in the 21st century and still we have bounded or attached with the superstition. So where we talk about the early man, where he was totally and totally dared with the natural things. In the natural things with what? Fire. वो आग से डरता होगा, उसको उससे ज्यादा पावरफुल होगी, बहुत से जीव जंतु मर गए होंगे या उसके कुछ रिलेटिव भी उसमें मर जाते होंगे, तो आग से डरता होगा। तो उसको वो नेचुरल, बिकॉज इफ यू विजिटेड टू द ट्राइबल एरियाज, स्टिल दे आर वर्शिपिंग द व्हाट, देयर नेचुरल गॉड्स। आज भी वो नेचुरल गॉड्स की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, इस तरह की पूजा।
Why? Because why? ये इसलिए पूजा नहीं करते हैं कि उनको बहुत मानते हैं, बिकॉज दे आर डेयरिंग विद दिस नेचुरल, वी कैन से नेचुरल डेमीगॉड्स, गॉड्स मानते हो, तो सेम थिंग। सो अगेन उनसे डरते हैं। करते हैं। पूजा करने के कई लक्षण हैं, बहुत से लोग डर के मारे पूजा करते हैं आज भी, कि भगवान कहीं उनका अहित ना कर दें, ठीक है। पूजा तो बहुत कम ही लोग करते हैं, कुछ लोग इच्छा पूरी कराना चाहते हैं। बहुत कम लोग, 100 में से 1 या 2 लोग मन से पूजा करते हैं, बाकी सभी लोग अधिकतर डर से करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई अभिलाषा है, कोई चाह है, कोई इच्छा है कि भगवान, जैसे बच्चों में क्या है कि बच्चे कब पूजा करते हैं, जब एग्जाम आता है, भगवान मुझे पास कर दे, 21 रुपए का प्रसाद तुझे जरूर चढ़ा दूंगा, तो इस तरह की अभिलाषा लेके चलते हैं। तो इस पे हम बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इट विल गो टू मच लॉन्ग। वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट व्हाई he will do the painting on the rocks, so that this painting is known as rock painting, and it was done, did inside the cave, and where inside the cave it was totally darkened or dark. So they believed, or they have the superstition attached with these early men. Why? What kind of superstition? For example, if we just on a hunting पे जाता है, ठीक है, हंटिंग पे जाने से पहले वो किसी जानवर की एक स्केच बनाता है, एक पेंटिंग बनाता है, वो जैसे भी बनाता है, उसका जैसे भी आर्ट हो। Because if you see at the page number 14, rock paintings and what they tell us, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, क्या है, क्या बताता है? इफ यू सी अ काइंड ऑफ अ डियर व्हिच इज रनिंग एट अ पर्सन, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग इट इज, it little bit look like early man or man, and the early man is catching this deer. So when they did this kind of painting, maybe they understood they will overpower these animals. Overpowered means they will defeat these animals, or the defeat means they will kill these animals. So this attachment of superstition attached with this early man, समझा आपको किस तरह का स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज अर्ली मैन के साथ जुड़ा होता होगा, इसलिए इस प्रकार की वो पेंटिंग भी, ये सारा का सारा गेसिंग है, क्लियर नहीं है, but here it tell about this rock paintings and what they tell us. फिर हो सकता है वो लोग बताने के लिए कि हम ये इस जानवर का शिकार करने जा रहे हैं। yes, ये भी बता सकते हैं। yes, आरुषि गिरी, पूछिए जल्दी पूछिए, क्या पूछना है? आपने हाथ खड़ा किया है। आरुषि गिरी, फिर से हम क्या बताएं, बताइए। पेंटिंग कैसे करते हैं भाई? पेंटिंग हाथ से करते हैं, पहली बारी पे सुन लीजिए। उस प्रकार वो जिस ब्रश का इस्तेमाल करता हो, मैं प्रेजेंट नहीं था, मैं जिंदा नहीं था, मैं भी गेस कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने गेस किया और उसने गेस करके इसमें बुक में कोडिफाइड कर दिया, और उस कोडिफाइड को हमने पढ़ा और आप सभी ने पढ़ा, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाए। मैंने पढ़ा और मैंने पढ़ के आपको डिटेल बता दिया, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, जो सिंपल मेथड से, क्योंकि कुछ भी आप जब जानते हैं तो किताबों के थ्रू ही जानते हैं। यू विल नो विद द हेल्प ऑफ द बुक्स व्हिच इज रिटन, nobody can tell. It is all about the guessing. Before the evidence of the written, which is written evidence. So this kind of a history, we discuss about this kind of a history known as prehistory, where we don't have the written document. So before this, we just know about with the help of the artifacts. Clear? So on the basis of bones, tools,
पान्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, etc. क्लियर? हम सिर्फ Yes, sir. गेस कर सकते हैं, ये 100% सर एक्यूरेट नहीं है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स के अंदर सब कुछ आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना व्यक्ति, आप सर जो रिमेन्स होते हैं ना, यस रिमेन्स में कई प्रकार जिससे हम के लोग रिमेन्स में, दिस रिमेन्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिमेन और द एनिमल रिलेटेड टू एनिमल रिमेन, और वी कैन से व्हाट द काइंड ऑफ jewelry they will wear. So this is also And kind so- of remain. And the what kind of food they will eat. अब and sir weapons, yes, जैसे पुरानी चीज है। अब उनके अच्छा इसके बारे में उनको कैसे पता चलता है कि वो इस प्रकार का भोजन करता था? क्योंकि भोजन आपको पता है 1 महीने 2 महीने में सड़ जाएगा, तो कैसे पता चलेगा? yes sir, वो भोजन कैसे पता they चला? will know by the method of charred form. The charred form is related with charcoal method. कोई भी चीज जब बर्न होती है, तो बर्न जब होती है तो उसकी राख बच जाती है, अगर उसको आप टच ना करें तो। आपको यकीन नहीं होता है तो गेहूं अगर खेत जल जाता है तो गेहूं तो जल जाता है, लेकिन जब तक उसको आप टच नहीं करेंगे तो बिल्कुल बिखरेगा नहीं, तो वैसा का वैसा ही रहता है। सो when, because if they will do the excavation, if the archaeologists did the excavation, they have to be very careful and watchful. उन लोगों को बहुत ही सावधानी से ध्यान पूर्वक वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, फावड़ा थोड़ी चलाना है, आपको बहुत ध्यान से धीरे 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 उसके ब्रश का इस्तेमाल करना है। उसमें भी आप जानेंगे एक्सकेवेशन के भी कोई मेथड है कि लंबवत हो रहा है कि क्षैतिज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है कि वर्टिकल हो रहा है। इसमें मैं सर लेकिन वो तो ये तो उस समय के लोग तो जलाते नहीं ना थे। जलाने का मतलब, मेरे कहने का मतलब कि अचानक में कहीं मान लो कि अब इसके बारे में मान लो कि कोई चीज बर्न हो गई अचानक में कहीं मिल रही है, तो वो बर्न हुई वैसे ही वैसे दब गई, ठीक है, और दब गई जब निकाला गया तो वो एज इट इज वैसी की वैसी दिख रही है। तो उसके बेसिस पर कि व्हाट द काइंड ऑफ फूड आइटम्स दे विल यूज। फॉर एग्जांपल जैसे अर्ली मैन जो है कब से लोहे का यूज करने लगे? हमको डायनासोर का फॉसिल मिलता है, तो हम कैसे पता लगता है कि डायनासोर ऐसे थे? सो व्हाट besides the two stones, their bones will be just what pressed, दब जाता है, और उसके इम्प्रिंट्स उस शेल पर या उस कह सकते हैं स्टोन पे आ जाते हैं, और स्टोन पे आने से इसका देखिए इतना जोर का दबाएंगे कि उसका इम्प्रिंट्स आ जाएगा। तो जब इम्प्रिंट्स आएगा उसी के बेस पर हम बताते हैं कि अरे इस प्रकार का भी कोई जानवर रहा करता था जिसका नाम। सर अर्ली मैन लोहे का यूज कब से करने लगे? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्ली लोहे का यूज कब से करने लगे? किसका इस्तेमाल करने लगे? लोहे, आयरन। अर्ली मैन कहाँ लोहे का इस्तेमाल करते थे? मैंने कब कहा? लोहे का उनका ही इस्तेमाल तो सिर्फ महात्मा बुद्ध के समय से स्टार्ट हुआ इंडियन सिनेरियो में 6th सेंचुरी बीसी से। सर स्टोन का यूज सर करते थे? जब मॉडर्न डायनेस्टी थी तब लोहे ना। के देखिए इन द एग्रीकल्चर iron is the hardest material. I am not talking about the hardest material. In the agriculture, iron is the hardest material or hardest material tool. ठीक है? और किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकता है। हाँ शिवांगी सिंह कुछ पूछना है? सर फायर एक चीज, हाँ कोई क्या पूछ रहा है पहले पूछिए। अभी हम उस पे आएंगे, लेकिन बातें नहीं। सर आयरन तो मॉडर्न डायनेस्टी जब था उस समय वो हुआ था, पता चला था ना। हाँ मान के चलिए, एग्जैक्टली पीरियड नहीं, ये भी रफली फिगर है, मतलब एक सेंचुरी बीसी का एक एस्टिमेटेड फिगर बताया जाता है। ओके सर।
क्योंकि आप महाभारत रामायण देखते हैं तो उसमें लोहे के बाणों का इस्तेमाल नहीं होता है, वो दूसरे कलर के दिखते हैं, वो कॉपर के हैं, Yes, sir. Yes, कॉपर sir. जैसा कलर दिखता है. So at that time they use the copper, maybe can say the later the bronze. सर तलवार तो लोहे की होती होगी ना? तलवार उस समय प्रयोग कहाँ देखते हैं? क्या राम जी तलवार से सर युद्ध करते तलवार हैं? तो प्रयोग और राम जी को आपने तलवार से युद्ध करते हुए देखा है? नो सर. No, sir. No, sir. भीम को तलवार से युद्ध करते हुए तो देखा है? गदा सर वो धनुष और तीर का sir. इस्तेमाल No, करते थे। no, भीम sir. और अर्जुन तो बालक, No, sir. तो उस समय लोह का और लोह का जो क्या मान सकते हैं कि लोहे का जो है कि आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन उस तत्काल समय में जो उनके पास हार्डेस्ट मटेरियल था उसी प्रकार को जिस प्रकार से वो इस्तेमाल कर सकते थे अलॉय के साथ मिक्स करके टिन के सर साथ। लेकिन जब शूर्पणखा का नाक कटा था तब तो तलवार से ही ना कटा था कि वो चाकू से. तो Yes, अच्छा वाली sir. तलवार होगी भी, तो ये थोड़ी क्लियर उसमें बताया गया कि तलवार उस समय लोहे की थी, यस सर, वो लोहे की तो हाँ, नहीं. सर। नहीं तो आपने कहीं पढ़ा हो कि लकड़ी की हो सकती है। तलवार स्टोन लकड़ी की की भी नहीं हो हो सकती, मैं नहीं कह सकता हूँ, नो लेकिन सर। ये तो कंफर्म, ये मान ले कि तलवार माने कि तलवार से नाक काट दी या कृपाण से नाक काट दी, जो भी है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि इसमें लोहे की तलवार थी? नो सर, ये नहीं लिखा है कि लोहे की तलवार थी. तो आप पढ़ते समय एकदम ध्यान लगाएं कि वो लिखा क्या है, ठीक है? ओके सर. चलिए आज सर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता था कि वहां पे कोई एविडेंस मिलेगा या फिर पेंटिंग मिलेगी? सर जाके और ढूंढता था ना? listen, there is a difference between evidence and the painting. In France there is a place Altamira. In France there is a place Altamira, and Altamira, you know, in Altamira 4 children have discovered this cave. 4 बच्चों ने इस केव को खोज निकाला. उसके पिता कोई थे, मतलब इंजीनियर थे या जो भी थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ही कह सकते हैं, बट हिज फादर इज नॉट आल्सो गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑन द स्ट्रक्चर. वो नीचे देख रहे थे, एंड द 4 स्टूडेंट वो खेलते खेलते पहुंच गए, एंड दे हैव सीन, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द सीलिंग्स ऑफ द केव्स, एंड आफ्टर दे जस्ट केम आउट and tell this to their parents, and these parents, if they looked, oh what a beautiful, so that's why after this the whole world know about the France. The Altamira is a place where this kind of Paleolithic, or we can say the Mesolithic painting is there. Paleolithic painting is there. तो कोई भी चीज होता है तो अचानक नहीं हो गया, उसको निर्माण जो भी है, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? समझे कि नहीं? यस सर. सर समझ रहे हैं. आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं? तो भैया आर्कियोलॉजिस्ट ने उसके लिए स्टडी की है, वो आर्कियोलॉजी का कोर्स करते हैं, वो कई साल उनकी उसकी ट्रेनिंग है, तब सर जाके लेकिन उनको पता कैसे चलता है कि यहीं पर मिलेगा एविडेंस? यहाँ पे एविडेंस मिलने का मतलब कि अचानक में ही, जैसे मान लिया आपको पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ऐसा है, रेलवे ट्रैक वहां पर बन रहा था तो इसी प्रकार की कोई भी चीज हो सकती है कि अचानक में कोई खुदाई हो रही है, चल मान लो कुआं खोद रहे हैं, अरे भाई ये क्या निकल रहा है, तो निकलने के बाद, अगर ये निकलने के बाद उनको पता नहीं चलता है, ये निकलने के बाद लोग उस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो आता है और उसको कैप्चर कर लेता है एरिया को, तब उसको पता चलता है, फिर वहां पर वेल मैनर में एक्सकेवेशन होता है, देन आफ्टर दे विल टेल, नो दिस प्लेस is totally and totally they have captured, and that they have done the excavation, and after they will claim that the what kind of civilization inside the or under the earth. Clear? Yes sir. आप ही और हम जैसे Yes, लोग sir. होते हैं जो उनको बताते हैं और उनको पता चलता है, उसके बाद उनके पास कोई अलग कोई टेक्निक नहीं है. आप चले जाइए लखनेसर डी, ये रसना के पास एक